Yes, good morning, students. Will we start with our lecture? Give a minute to share the screen. Students, कौन से पेज पे थे हम? We were on, I think so, nervous system, 7th chapter. Yes, ये वाला पेज थे हमारी. Just a second.
Hmm. So we were on the midbrain, जहाँ पे वापस से हम दिखा देती हूँ मैं आपको ह्यूमन बीइंग का डायग्राम. एक्चुअली आई वाज फाइंडिंग द डायग्राम बट वो दिख नहीं रहा था जो लिया था मैंने स्क्रीनशॉट. तो दैट इज द ह्यूमन ब्रेन, जहाँ पे हमने देखा था कि पॉन्स मेडुला oblongata था. देन वी हैव द लैटरल sulcus, frontal lobe, precentral gyrus, central sulcus, postcentral gyrus, parental lobe, then occipital lobe and the temporal lobe and the cerebrum. ठीक है, ये आपके सारे पार्ट्स हैं जहाँ पे हमने दिखे थे. नाउ विल स्टार्ट विद the main parts. ये सारे patterns and everything was given here. Hmm. Now we'll come to the cerebrum. So cerebrum, it is the largest part of the brain. It outside covered of it gray color and is called a cerebral cortex. ये जो सेरेब्रम है ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का एक, और ये कवर किया गया है एक ग्रे कलर से. इसको हम सेरिब्रल बोलते हैं. द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंट्रोल, एक सेकेंड. तो cerebral cortex control the higher order mental, it is coming with the mental process such as the attention, perception, learning, memory. तो ये सारी चीजें cerebral cortex कंट्रोल करता है अपने अंडर में. तो यहाँ पे जो सरफेस है cerebral cortex का इज डिवाइड इनटू टू हेल्थ, दैट इज द राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. यहाँ पे दोनों है, एक राइट हेमिस्फीयर है और एक लेफ्ट हेमिस्फीयर है. न्यूरॉन हैव द राइट हेमिस्फीयर. न्यूरॉन का जो राइट हेमिस्फीयर है वो कंट्रोल करता है बॉडी लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. न्यूरॉन जो राइट साइड में है वो कंट्रोल करता है अपने अपोजिट, दैट इज द लेफ्ट साइड की बॉडी को, पूरी जो पार्ट है उसको कंट्रोल करता है. एंड लेफ्ट साइड का हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लैंग्वेज, स्पेटियल रिलेशन एंड पैटर्न रिकग्निशन. कभी कभी आपने देखा होगा कि बहुत लोग को पैरालाइज हो जाते हैं. पैरालाइज इन द सेंस कैसे कि वो बोल नहीं पाते, जबान थोड़ी सी बाहर आ जाती है, या कभी कभी हाथ पैर काम करना बट बॉडी का नहीं. यहाँ पे लैंग्वेज, स्पेटियल और कहीं ना कहीं एक ब्रेन का भी वर्कआउट होता है. तो दैट इज फ्रॉम दी, ये स्टार्ट होता है आपका लेफ्ट से. ठीक है. तो दे आर कनेक्टेड विद द बंडल्स ऑफ फाइबर. यहाँ पे बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, वो उससे कनेक्टेड हुए रहते हैं. तो दे आर कनेक्टेड बाय द बंडल ऑफ फाइबर इज कॉल्ड दी कॉर्पस कॉलोसम. इसको बोला गया है कॉर्पस कॉलोसम. ठीक है. नाउ जस्ट अ सेकंड. आतिका, आतिका मेरी आवाज आ रही है आपको? आतिका. ओके, चलो ठीक है. आलिया, शेख आलिया. यस। आलिया यहाँ से पढ़ो बेटा, ट्राई दिस नाउ, एक बार पढ़ो. मिस आप थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए ना पेज को. Try this. We have neurons which jump across the hemisphere and थोड़ा controls थोड़ी another part. थोड़ी सी Yes. तेज आवाज, आवाज नहीं आ रही है. Okay. Try this. We have neurons which jump across the hemisphere and control another part of the body. If a person's right side of the body is paralyzed, neurons from the left side of his body stop functioning and the person become handicapped, even if he has another set of healthy neurons in the another side of his body.
If we train ourselves to use both part of our body equally, we will not be dependent on others for help even if we get paralyzed attack. So try to use both sides of your body while performing daily routine tasks like brushing teeth, combing hair, etc. Each hemisphere is divided into four lobes. First, frontal lobe. It controls motor action, thinking, memory, and reasoning. It has Broca's area which help us in speech production. Miss next page. Second, parietal lobe. It helps us in understanding information regarding skin like touch, pressure, pain, and temperature. Third, occipital lobe. It controls our vision. It is a visual processing center. It controls sense of hearing, smell, and taste. It has Wernicke's area, which help in understanding of language. Fourth, temporal lobe. Just above the ears in the cortex is temporal lobe. Hearing, understanding, language, memory for language take place because of temporal lobe. Limbic system. Another important part of the brain is limbic system. Part of limbic system are a hippocampus. There is a storage of long-term memories. If a person get Alzheimer's disease, his hippocampus is mainly affected. B. Amyg- Amygdala. It stores emotional memories of our experiences. We experience emotion due to this part, especially fear. Third, thalamus. It is called as the relay station of the brain. It receives all the information from the body and send it to the various part of the brain. Third, D. Hypothalamus. It controls major bodily needs like hunger, thirst, sex, and temperature regulation and sleep. Primary need of any individual. It is also called as pleasure center of the brain, of the body. Sorry. Pillar of better brain functioning. First, physical and mental exercise. People who exercise regularly have lower risk of developing Alzheimer's disease. Exercise improves blood flow and memory. It also stimulates chemical changes in the brain that improves learning, mood, and thinking. Second, brain and nutrition. Nutrition plays important role in brain functioning. Nutritional deficiency may lead to some neurological problems, so understanding the need of nutrition of our brain is essential. Human brain consumes enormous amount of energy. Despite representing only 2% of body's total mass, human brain consumes 20% of body's total energy because of increased metabolic need of human beings. As evolution took place, human life became more complicated and demanding. As a result, need for nutrition by the brain kept on increasing to face these challenges. This next page. एक मिनट यार. So now we have seen here the cerebrum का function and how it's look about it. Now यहाँ पे एक छोटी सी एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. Try this now करके. That we have the neurons which jump across the hemisphere and control the another part of the body. If a person right side of the body is paralyzed, neuron from the left side of his body stop functioning and the person become the handicapped. Even he has another set of healthy neuron in the other set of his body. Yes. If we train ourselves, we use both part of our body equally. We will not be dependent on other for the help. Even if we get the paralyzed attack, so try to use both side of our body while performing the daily routine tasks like the brush, teeth. ये तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं कि लेफ्ट में रहेगा तो राइट पे अफेक्ट होगा और अगर राइट रहेगा तो लेफ्ट में अफेक्ट होगा. So that's why we should have the training for both the sides कि हम अपने काम कर सके कि कल को कुछ अगर इश्यू या तकलीफ हो तो we can perform our duty well. ठीक है, instead by happening of these things.
So each hemisphere is divided into four lobes. अभी यहाँ पे चार lobes में ये divide है. Let me see what are the lobes are there. First one is the frontal lobe. So it control motor action. Motor action means यहाँ पे वापस वही आएगा. Mental process को लेके है. That is the hmm, motor action. That is thinking, memory, and reasoning. It has the Broca's area which help us in the speech production. Speech production का मतलब जहाँ से हम बोलचाल करते हैं, बातचीत होती है, वो हमारे फ्रंटल लॉब के अंडर में आता है, जहाँ पे हम सोचते हैं, हमारी मेमोरीज होती है, किसी भी लॉजिकल चीज को हम रीजनिंग में कन्वर्ट करके आंसर देते हैं. तो ये सारी चीजें हमारे इसके अंडर में आएगी, फ्रंटल लोब में. The next one we have the parietal lobe. That is, it helps us in understanding information regarding skin like touch, pressure, pain, and temperature. So this is in the parietal lobe, जहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन किसकी मिलती है, सेंसरी ऑर्गन व्हील सेंस से. तो हमारी स्किन टच हो गई, हमारा प्रेशर हो गया, हमें किसी चीज का प्रेशर हो रहा है या हमें पेन हो रहा है, हमें टेम्परेचर की भी चीजें हमें कौन बताती है, पैरिटल लोब बताती है. ठीक है. With the third one we have the occipital lobe. It control our vision. हमारे विजन को ये कंट्रोल में रखता है. It is visual processing. Visual means आंखों के जो पार्ट्स होते हैं, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग, उसका ध्यान ये देता है. ठीक है. पूरा वर्कआउट जो भी चीजें हैं यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब देखता है. इट कंट्रोल सेंस ऑफ हियरिंग, जिसे हम सुन सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. इट हैज द वर्निक एरिया विच हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज. ठीक है. इनका इसका एक अलग से एक वर्निक एरिया है जो अंडरस्टैंड कर सकते हैं लैंग्वेजेस. ठीक है. मतलब कभी कभी ऐसा होता है, तो सीधी सी बात है, हमें बहुत सारे लैंग्वेजेस, इवन वी नो अबाउट द 3 to 4 लैंग्वेजेस विच वी कैन अंडरस्टैंड. तो ये हम समझते कैसे हैं, जानते कैसे हैं, विद द हेल्प ऑफ द ऑसिपिटल लोब, जहाँ पे हमें कंट्रोल करते हैं सेंसेस ऑफ हियरिंग, स्मेल एंड टेस्ट का. ठीक है. नाउ नंबर 4 पे है टेम्परल लोब. तो जस्ट अबाउट द ईयर, कान के ऊपर अगर देखेंगे, इन द कॉर्टेक्स, यू कैन सी दिस इज द पार्ट डायग्राम में. यहाँ पे ह्यूमन ब्रेन लोब्स का अलग अलग दिया हुआ है. दिस इज द बैक साइड, डाउन साइड सेरिब्रम. और ये हमारा फ्रंट लोब है जो सर के ऊपर रहता है, सामने. ठीक है. फ्रंट लोब हो गया, ये टेम्परल लोब हो गया इधर साइड में, parietal lobe and occipital lobe. You just see the diagram, then you will know about कि where it is exactly located. फिर यहाँ पे जो सुनना है या टेस्ट करना है या सेंस ऑफ व्हाट वी से विजुअलाइजेशन, हियरिंग, ये सारी चीजें इसी तरीके से काम करती है. नाउ कम टू द टेम्परल लोब, जस्ट अबाउट द ईयर, जस्ट कान के ऊपर है ये. द कॉर्टेक्स इज टेम्परल लोब है. हियरिंग, अंडरस्टैंडिंग, जो लैंग्वेज है, मेमोरी, अलग अलग टाइप की जो चीजें हैं मुझसे समझते हैं. नाउ कम टू द दैट इज 7.2 लिम्बिक सिस्टम. एक मिनट, बिफोर वी गो दिस वन, यू कैन जस्ट सी दिस डायग्राम. ये अपनी लिम्बिक सिस्टम है. लिम्बिक सिस्टम में
amygdala from the downside, then mammillary body है, olfactory bulb ग्रे वाला, देन स्पेक्ट्रम, इसे छोटा पिंक कलर का आता है वो, देन फ्रंटल कॉर्टेक्स फॉर्मिक्स, इसे ब्लू कलर का, यदि सिंगुलेट कॉर्टेक्स, ऑपस कॉलिसन, थैलामस, अगेन ग्रीन कलर में स्टीरिया टर्मिनालिस, ये हो गए ना। कम टू दिस पॉइंट, in limbic system, another part of the brain is limbic system. Part of limbic system are कौन कौन से पार्ट है इसके? हिप्पोकैम्पस, एमिगडाला, देन थैलेमस, देन हाइपोथैलेमस। ठीक है, दिस इज द मेन चार पार्ट हम देखेंगे, बाकी सब इसमें है। we'll see about this other, another important, the hippocampus है the storage of long term memories। हिप्पोकैम्पस का मतलब होता है यहाँ पे हमारे दिमाग में बचपन से लेके जो भी चीजें, जितनी भी चीजें हैं, वो हमारे माइंड में फिट होती है। इफ अ पर्सन गेट दी एल्मीरिया डिजीज, एल्मीरिया डिजीज मतलब लंबे टाइम तक याद रखने वाली चीजें हम अचानक धीरे 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 भूलना स्टार्ट कर देते हैं। इस हिप्पोकैम्पस इज मेनली अफेक्टेड, यहाँ पे जो आपका हिप्पोकैम्पस रहता है उसमें से आप अपनी मेमोरी धीरे धीरे डिलीट होती जाती है, आपको चीजें याद नहीं रहना। एक दिन ऐसा होता है कि कभी कभी आप भूल जाते हो कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। दिस इज रियली वेरी डेंजरस, ये हम लोग ने देखा था, बहुत डेंजरस बीमारी है ये। Then we have the amygdala, is store emotionally memory, emotional memories of our experience. We experience the emotion due to this part, especially fear। पहले में हमने क्या देखा था? हिपोकैम्पस देखा था, जहाँ पे द पर्सन टेलमीज या डिसीज से अफेक्ट हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है एमिगडाला, जहाँ पे स्टोर किया जा रहा है इमोशनल मेमोरीज ऑफ आवर एक्सपीरियंस, एंड वी एक्सपीरियंस दी, यहाँ पे हम अपने इमोशनल जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो स्पेशली जो फियर अभी रहा है। सो वी हैव दी हिप्पोकैम्पस हो गया अपना, एमिडिगाला हो गया, then we have the thalamus. Now it is called a relay station of the brain. It receives all the information from the body and send it to the various part of brain। थैलेमस का काम होता है कि सारे इंफॉर्मेशन जो बॉडी का होता है वो लेके ब्रेन के पास लेके आता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू फील लाइक थर्स्टी, ठीक है, तुम्हें अगर प्यास लगी है तो ये जो प्यास वाली जो एक मैसेज होती है ना, वो तुम्हारे ब्रेन तक जाएगा। दिस गो टू योर ब्रेन, फिर वो ब्रेन जो है इंडिकेशन देगा कि यस, कि नाउ उसको थर्स्ट लग रही है, वो चीज यू रिक्वायर्ड फॉर दिस विल। तो कहीं ना कहीं ये एक पूरी तरीके से एक मैप है, जहाँ पे आप वो चीजें आप देखते हो कि किस तरीके से ब्रेन टू बॉडी और बॉडी टू ब्रेन इंफॉर्मेशन आप रिसीव कर रहे हो। नेक्स्ट इज हाइपोथैलेमस। यहाँ पे हमने क्या देखा था? थैलेमस, और यहाँ पे हम देखेंगे हाइपोथैलेमस।
It controls the majorly body needs like the hunger, thirst, sex, temperature, regulation and sleep. ये सारी चीजें क्या करता है, ये कंट्रोल करता है. Primary needs of an individual. It is also called the pleasure center of the our body. इसको प्लेजर सेंटर बोला जाता है कि यहाँ पे अपने को क्या कंट्रोल करना है और क्या नहीं कंट्रोल करना है. बट दिस इज ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लेजर वी कैन. ठीक है. तो दिस इज योर द होल ऑफ द लिम्बिक सिस्टम चल रहा है. ठीक है. जस्ट गिविंग अ मिनट टू सी दिस वन. फटाफट एक बार आप देख लो with the diagrams. Diagram also is very important. फटाफट.
ओके स्टूडेंट्स, यहाँ तक हो गया आपका रीड करके? चलो, now we'll start with the pillar of better brain functioning. ठीक है, let me see here. Here we are going to see the better brain functioning में the physical and mental exercise, brain and nutrition आ जाएगा आपका. Then the tackle your medical problems, sleep and relaxation, mental fitness. Then we have the social interaction. ठीक, कौन सा last time? Yes, Tasmia. तस्मिया, तस्मिया अनम्यूट करो अपने आप को. तस्मिया शेख, MR. तस युवराज. यस मिस. हाँ युवराज, आवाज आ रही है? हाँ. हम्म. यहाँ से एक बार रीड करो अपना. एक मिनट बताती हूँ. फ्रॉम द पिलर ऑफ द ब्रेन से. हाँ. ठीक है. हाँ. Physical and mental exercise. People who exercise regularly have lower risk of developing Alzheimer's disease. Exercise improves blood flow and memory. It also stimulates chemical changes in the brain that improves learning, good and thinking. Brain and nutrition. Nutrition plays important role in brain functioning. Nutritional deficiency may lead to some neurological problems. So understanding the need of nutrition for brain is essential. Human brain consumes enormous amount of energy despite representing only 2% of body total mass. Human brain cons- consumes 20% of body total energy because of increased metabolic need of human beings. As evolution took place, human life become more complicated and demanding. As a result, need of nutrition by the brain kept on increasing to face these challenges. हो गया मिस. Nutrition plays important role during developing years so to optimize the functions of brain. It is also essential during old age to avoid degenerations of cells. Nutrition for brain will enhance brain functioning. It will prevent as well as help in treating neurological disorders. Today, human brain is exposed to high level of stress, which results in the process called as oxidation. Any food which is high in antioxidants like almonds, dark chocolates, onions, uh, berries, mangoes, seafood can help to control ill effects of oxidation. Tackle your medical problems. Hypertension, diabetes, obesity, depression, head trauma, higher cholesterol, and smoking increase the risk of dementia. You can control and reduce this risk by going for regular health checkups and taking medicines whenever necessary. Sleep and relaxation. Sleep energizes the brain, improves mood and immune system by clearing wastage and toxins from the body. This may reduce abnormal protein of the brain called beta amyloid plaque, which is relaxed to Alzheimer's disease.
Practicing meditation and managing stress will help to control age related decline in brain health. Mental fitness. Brain exercise improves your brain functioning and promote new brain cell growth, decreasing change of developing dementia. A person can keep his brain stimulated by solving puzzles, problems, watching stimulating movies, by thinking about different issues, or by learning something new. Social interaction. Spending time with others, participating in stimulating conversation, and staying in touch and connected with family and friends is good for your brain health. Studies have shows that those who interact more with others show less decline in their memory. After brain, let us discuss about spinal cord. Yes, Spinal cord. continue the spinal cord. I'll just next page तक then I'll explain it. ठीक है? Okay, miss. It is the second important part of the central nervous system. It extends from neck to waist. Its main function is to send information from brain to body and from body to brain and to control reflex action like salivation, knee jerk, blinking of eyes, etc. Reflex action is an evolutionary, involuntary, and nearly instantaneous movement in response to stimulus. Spinal cord is connected to the periphery through 31 pairs of spinal nerves. Each spinal nerve is joined to spinal cord through two roots, dorsal and ventral root. If dorsal roots uh, if dorsal roots are injured, we will not have sensation, and if ventral roots are injured, we will not be able to move our body and control reflex action also. These are quick and simple pattern of behavior without the involvement of brain. For example, knee jerk, sneezing, blinking of eyes. इस एक्टिविटी भी पढ़ना है. हाँ. Uh, think of the following action. Which of them would be reflex action and which of them will not be reflex action? Throwing a ball in a cricket match. Closing the eyes if someone brings a finger too close to them. Removing the hand when you accidentally touch a throne. Immediate movement of the knee when tapped just below it. Touching a hot object and pulling back your hand. हो गया मिस. ये भी पढ़ना है हाँ. मिस. ये वाला आपको सिर्फ ग्लैंड्स के एक्सोक्राइन तक सिर्फ पढ़ना है. ठीक है? चलो. Glands. You must be aware of physical and physiological changes you are experiencing at this stage of puberty. For boys, your body mass increase, facial hair, pubic hair develop, your voice become hoarse. In case of girls, your body structure changes, pubic hair develop, mood swings occur, and you experience your first Menarche. Both sexes develop curiously and liking towards opposite sex. You can't understand the changes, and a result, you may find it difficult to adjust with them. There is lack of concentration and mood swings occurring along with these changes. You are aware of these facts that these changes are taking place due to glandular system of your body. So now you may be curious to know about glands. Glands are specialized groups of cells or organs that secretes chemical substance. There are many glands, and they all fall into two categories: endocrine and exocrine. आगे बढ़ना है मिस. नहीं, एक मिनट अभी नहीं करना है. अच्छा, स्टॉप हियर. एक्सप्लेन करते हैं.
Okay, so we'll see here the pillars of the brain functioning. The first one, we can see the physical and the mental exercise. The people who exercise regularly have the lower risks of developing asthma disease. जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं उनकी जो मेमोरी कंसंट्रेशन पावर होती है वो ज्यादा अच्छी होती है, और जो अल्जाइमर डिजीज का जो प्रॉब्लम है वो बहुत कम होता है, बहुत कम रिस्क में होती है. सो exercise help us, and exercise improve the blood flow and memory. So it also stimulates the chemical changes in the brain that improve the learning, mood and thinking. ठीक है, तो ये सारी चीजें हमें एक्सरसाइज से बेनिफिट होती है. ठीक है, एक फटक से ये जो होती है द फ्लो ऑफ द केमिकल जो होती है, जो चेंजेस होती है ब्रेन में, ये इम्प्रूव करता है लर्निंग मोड और थिंकिंग को लेके. नेक्स्ट वी कैन सी द ब्रेन एंड न्यूट्रिशन. द न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ब्रेन फंक्शनिंग. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, न्यूट्रिशन से बोलते हैं कि जैसा खाते हो वैसा सोचते हो आप, राइट? तो वही चीज है. So nutrition deficiency may lead to some neurological problem. So understanding the need of nutrition for brain is very important. ठीक है, यहाँ पे न्यूट्रिशन क्या प्ले करता है, उसके रोल्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ वी आर गेटिंग द थिंग्स टू आवर बॉडी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ठीक है, एंड ह्यूमन ब्रेन कंज्यूम एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी. क्यों नहीं लगता? जिस तरह शरीर को हमारे सारे विटामिन लगते हैं, उसी तरीके से दिमाग को भी एक एक्सरसाइज की जरूरत होती है, दिमाग को एक न्यूट्रिशन की जरूरत होती है, उसे भी प्रोटीन की जरूरत होती है. हर एक चीज जो एक बॉडी को लगता है वही सेम चीज हमारे ब्रेन को रिक्वायर्ड होती है. सो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी में लीड टू सम neurological problems. So understanding the new need of nutrition for the brain is essential. Okay. Human brain consume enormous amount of energy despite representing only 2% of body total mass. So human brain consumes 20% of body total energy. हमारे जो ब्रेन है कितना कंज्यूम करता है? 20%. पूरी बॉडी में अगर जितने हैं उसके 20% बॉडी का एनर्जी यूज कौन करता है? ब्रेन करता है. बिकॉज ऑफ इंक्रीज मेटाबॉलिक नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग. जैसे कि सारा काम तो आपका ब्रेन ही करता है. ये कैसी होती है? ये रिमोट कंट्रोल है, नीचे बॉडी है अपनी, वो एक मशीन है. मशीन कब काम करता है? जब रिमोट कंट्रोल से हम उसको कोई इंस्ट्रक्शन देंगे. ठीक है, so, because of increase the metabolic need of human being, as evolution took place, human life became the more complicated and demanding. So, as a result, need for nutrition by the brain kept on increasing to face these challenges. सो एज एन एवोल्यूशन का मतलब हो गया जहाँ पे आप देखते हो कि नई चीजें रोज हो रही इंसानी जिंदगी में, है ना? पहले चल नहीं सकते थे, चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, सारी चीजें अच्छी चीजें सोच रहे हैं, यहाँ पे न्यू इन्वेंशन हो रहा है, न्यू टेक्नोलॉजी सारी चीजें हो रही है. तो ये सारी चीजें आप देखोगे बन रही है. लाइफ बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड एंड डिमांडिंग. सो एज अ रिजल्ट नीड, इस चीज के लिए हमें ज्यादा न्यूट्रिशन की जरूरत होती है टू कीप अ ब्रेन की अलग अलग चैलेंजेस को. सब बोलते नहीं कुछ चीज याद नहीं रहे, बोलते क्या वो बादाम नहीं खाता क्या? दिमाग को तेज करने के लिए बादाम डेली का खाया कर. तो ये एक तो लाइन इसके लिए फिक्स है. ठीक है, तो न्यूट्रिशन प्ले इंपॉर्टेंट रोल ड्यूरिंग developing areas. So to optimize the function of brain, it is also essential during old age to avoid degeneration of cell. न्यूट्रिशन यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट रोल करता है कि जिस तरीके से धीरे धीरे हमारे ब्रेन का जो फंक्शन है वो बढ़ते जाता है, जैसे कि आप बड़े होते हो,
आपकी जिस तरीके से नीड ज्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी के रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है, वैसे ही ब्रेन की भी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज्यादा ही हो जाती है। जिस तरीके से वो भी हल्का सा साइज में बढ़ता है, उसका फंक्शन बढ़ता है, तो इस सारी चीजों की जरूरत पड़ती है वहां पे। इट ऑल्सो असेंशियल ड्यूरिंग ओल्ड एज टू अवॉइड डीजनरेशन ऑफ सेल। डीजनरेशन मतलब होता है ऑलरेडी जो सेल है वो क्या हो रहा है, डीजनरेट हो रहा है। कभी कभी उस चीज को, कोई पेड़ होता है या पौधा होगा तो वो मुरझा जाएगा, तो उसको करने के मतलब मुरझाने से पहले हम क्या करते हैं, उसको थोड़ा सा और खाद पानी दे देंगे हम, ठीक है, थोड़ा सा उसके अंदर और कुछ डाल देंगे कि कम से कम वो एक लेवल तक जिंदा रहे। सो उसी तरीके से यहाँ पे डीजनरेट उसको अवॉइड करने के लिए हमें अपने दिमाग को एकदम क्लियर कट रखने के लिए वी हैव टू थिंक अबाउट हियर कि किस तरीके से हमें अपने ब्रेन को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है, और ब्रेन की जो सेल्स है उसको हमें कैसे अच्छे तरीके से रखना है। तो न्यूट्रिशन फॉर ब्रेन will enhance brain functioning. It will prevent as well as help in treating neurological disorder. चलो यहाँ पे एक और एग्जांपल लूंगी मैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर ईटिंग टू मच लाइक ऑयली थिंग्स, ठीक है, अगर आप कुछ बहुत ऑयली खा रहे हो या बाहर का आपने बहुत कुछ खा लिया है, तो ये डायरेक्टली अफेक्ट किससे करेगा, आपके बॉडी को करेगा, बॉडी को ही करने वाला है, राइट। जहाँ पे आपको लूज मोशन चालू हो जाएगा, स्टमक एक चालू हो जाएगा, सारी चीजें। बट यही चीजें अगर आप घर में कुछ अच्छी चीजें लाइक रोटी सब्जी हो गई, बाहर का थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हो खाना, घर के दाल चावल सब्जी रोटियां खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, ड्राई फ्रूट्स खा रहे हो, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हर कोई ड्राई फ्रूट्स खा सकता है, लेकिन आपके घर में जो नॉर्मल खाने बनते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, फिर मम्मा रहती हैं जो एक वीकेंड्स के टाइम पे कुछ आपके लिए स्पेशल डिश हो ही जाता है, संडे के दिन फैमिली एक हो ही जाता है, तो हमारे पास इतनी फैसिलिटीज है। तो ये जब एक ऑर्डर आपने बना के रखा हुआ है ना कि वीकेंड द सैटरडे एंड संडे वी कैन हैव अ चीट डे, अपने मन का हम खा सकते हैं, लेकिन अगर यही रेगुलर बेसिस पे रहा देन व्हाट विल हैपन। उसी तरीके से ब्रेन को भी यही चीज की जरूरत होती है। एक बार कोई चीजें पुरानी होने लगती है, या तो मैंने सबको बताया मेमोरीज धीरे धीरे बहुत लॉस होने लगती है आपकी, ठीक है। तो जो बोलते हैं बादाम 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 खाने से उसमें क्या मिलता है, वो चीजें ज्यादा मेंटेन करने के लिए तभी बोलते हैं बादाम खाया कर। सो ये एक चीज हो गई। देन टुडे द ह्यूमन ब्रेन इज एक्सपोज, एक मिनट, इट विल हेल्प अस टू ट्रीटिंग द न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। यहाँ पे दूसरा भी दिया हुआ है कि जैसे ही खाएंगे हमें न्यूट्रिशंस मिलेगी, ये जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है, जैसे कोई चीज हम भूल जाते थे, अल्जाइमर डिजीज हो जाती है, या कभी मेंटल डिसऑर्डर्स होने लगते हैं, हमारी चीजें इम्बैलेंस हो जाती है, ये सारी चीजों से हम बच सकते हैं। टुडे ह्यूमन ब्रेन इज एक्सपोज टू हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस, यस हम सब स्ट्रेस में, इवन आप, मैं, हर कोई, which result in the process is called the oxidation। ये जो स्ट्रेस का जो प्रोसेस चलता है, ठीक है, सारे प्रोसेस, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं। द स्ट्रेस के प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन। एनी फूड विच इज हाई इन antioxidant like the almond, dark chocolate, onion, berries, mangoes, seafood can help to control the ill effect of ऑक्सीडेशन। ये सारी चीजें एक इस ऑक्सीडेशन या स्ट्रेस को क्या करता है, हेल्प करता है शांत होने के लिए, ठीक है।
Okay, so tackle your next one. We can see the tackle your medical problem. Okay. Now, hypertension, diabetes, obesity, then depression, head trauma, higher cholesterol, and smoking increase the risk of डिमेंटिया. ये आपके पास इतने सारे हैं. ये मेडिकल मतलब ये सिर्फ आपका मेंटल प्रोसेस से नहीं, बल्कि मेंटल प्रोसेस तो एक रीजन हो सकता है, बट ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है आपके फिजिकल हेल्थ. डायरेक्टली इट अफेक्ट्स टू द फिजिकल हेल्थ. सो इसमें मेंटल प्लस फिजिकल दोनों मिक्सअप करके दिया हुआ है. जैसे हाइपरटेंशन हो गया, डायबिटीज हो गई, ओबिसिटीज, डिप्रेशन हम सबको है, हेड ट्रॉमा आए गए दिन होते रहते हैं, दूसरे दिन हमारा सर दुखता है. ठीक है. देन वी हैव दी हाई कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग इश्यूज. सो ये सब क्या करता है, रिड्यूस करता है फॉर गोइंग हेल्थ, रेगुलर हेल्थ. ये चीजें डेफिनेटली नॉट ओनली द फिजिकल मेंटल हेल्थ अफेक्ट करता है, जहाँ पे हमें रेगुलर बेसिस के लिए जाना चाहिए. स्ट्रेस के लिए तो जैसे मैंने बताया था, यू कैन डू द योगाज एंड एवरीथिंग. ये सब के लिए क्या करना होगा, आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा टू बी फ्री फ्रॉम दी स्ट्रेस से. तो रिस्क बाय गोइंग द रेगुलर हेल्थ चेकअप के लिए जाना चाहिए. मेडिटेशन करो आपको जब भी आपको फील होता है. ठीक है. नेक्स्ट वी कैन सी द स्लीप एंड रिलैक्सेशन. Sleep energize the brain, improve mood and immune system by clearing the wastage and toxins from the body. सोने से और रिलैक्स करने से आपकी जो एनर्जी है वो बचती है, जो ब्रेन है वो इम्प्रूव करती है, राइट. मूड फ्रेश होता है, आपकी इम्यून सिस्टम काफी स्ट्रांग हो जाती है, एंड जो भी आपके वेस्टेज है वो टॉक्सिस वो बॉडी से निकल जाती है. And this may reduce the abnormal protein of the brain called the beta amyloid plaque, which is related to the Alzheimer disease. जहाँ पे जो स्लीप होती है ना बहुत ज्यादा, आपको मतलब 24 घंटे सोते रहो ये भी मतलब नहीं होता. द स्लीप मीन्स हियर ऑन एन बीन टाइम जो आपके रेगुलर सोने के टाइम है, बट मेक दैट रेगुलर स्लीप इज एन इफेक्टिव वन होता है. जब आप सोते हो, स्टिल वी नो अबाउट आवर ब्रेन वर्क. ऐसा नहीं है कि आप सो गए तो आपका ब्रेन काम करना बंद कर दिया. आपके सोने के बाद भी देर आर स्पेसिफिक टाइम जहाँ पे आपका ब्रेन 24/7 काम करता रहता है. माइट बी एन समटाइम्स स्लो स्पीड, समटाइम्स बहुत एकदम माइनर जीरो स्पीड में काम करता है, बट इट गिव द रिलैक्सेशन. ठीक है. तो इम्प्रूव यहाँ पे मूड एवेन्यू system कर दे सकते. They may reduce the abnormal protein of the brain called the beta amyloid. ये रिड्यूस करता है एबनॉर्मल प्रोटीन, जो भी अनवांटेड चीज है अपने बॉडी में, अपने ब्रेन में, उसको वो रिड्यूस कम करता है. उसको बोलते हैं बेटा एमिडलॉइड प्लेग. ये अजमा डिसीज से रिलेटेड है, मतलब जो मेमोरी की प्रॉब्लम्स चालू होती है वो इससे होता है, और इनडायरेक्टली अगर बोले तो ये डिसीज से बचने का एक तरीका है. Practicing meditation and managing stress will help you control the age-related decline in brain health. कहते हैं जैसे जैसे आपका एज बढ़ता है वैसे वैसे आप चीजें भूलना चालू कर देते हो. आपका ब्रेन है फंक्शन काम करना कम होगा. दक्ष पढ़ाई कर. हम्म. तो जैसे जैसे आपके यहाँ पे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपकी जो ब्रेन हेल्थ है वो इश्यूज चालू होते हैं, भूलना चालू हो जाते हैं आप. आपको चीजें याद नहीं रहती, कभी कभी बहुत पुरानी चीजें भी आप भूल जाते हो. हर किसी के साथ होता है. बट ज्यादा होना एक वो प्रॉब्लमेटिक है. तो दिस शुड कैन बी रिड्यूस किया जा सकता है अगर आप प्रॉपर पहले से ही उस चीज के लिए रेडी रहो कि हमें करना क्या है. फ्रॉम द स्टार्टिंग वी कैन टेक द थिंग्स दैट इज स्लीप एंड रिलैक्सेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एक्सरसाइज. देन मेंटल फिटनेस.
Brain exercise improves your brain functioning and promote new brain cell growth, decreasing chances of developing dementia. A person can keep his brain stimulated by solving puzzle problems, then watching stimulating movie, by thinking about different issue or by learning something new. Okay. Hmm. एक मिनट. सो यहाँ पे मेंटल फिटनेस में देखेंगे कि ब्रेन एक्सरसाइज करता है इम्प्रूवमेंट फॉर द ब्रेन फंक्शनिंग एंड प्रमोट न्यू ब्रेन सेल ग्रोथ. आप जैसे एक्सरसाइज करते हो वहां पे आपके ब्रेन में एक न्यू सेल ग्रोथ करता है एंड डिक्रीजिंग द चांस ऑफ डेवलपिंग डेमेंटिया. पर्सन अपने ब्रेन को स्टिमुलेट करता है, मतलब एक्टिवेट करता रहता है हमेशा. पजल हो गए, कोई गेम्स हो गया, देर कोई प्रॉब्लम्स हो गए, बहुत सारे अलग अलग मूवीज हो गए, या तो आप कुछ नया सोच रहे हो करने के लिए. मतलब दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द एक्सरसाइज जहाँ पे आप हर एक चीज में एक लॉजिकल थिंक ढूंढते हो. कभी किसी से बात करते हो या किसी चीज पे आप सोचते हो, कुछ ना, आप गेम भी खेलते हो, कैसे दिमाग लगता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट. ठीक है, तो ये एक तरीका होता है जहाँ पे आप अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हो. ये इन्वॉल्वमेंट ही आपका एक एक्सरसाइज है. नाउ वी विल सी द लास्ट वन, सोशल इंटरेक्शन. Spending time with others, participating in stimuli conversation, and stay in touch and connecting with families and friends is good for your brain health. So studies have shown that जो ज़्यादा interact करता है with others show less decline in memory. ज़्यादा बात करने से आपकी जो memories होती है वो ज़्यादा long term के लिए रहती है. ठीक है, this we can see. तो बात करते रहो एंड बी इन टच विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली. ज़्यादा कनेक्ट रहो उससे. इससे क्या होगा, दिस इज गुड फॉर योर गुड ब्रेन हेल्थ. ठीक है, तो ये इसमें हमने क्या क्या देखा, सोशल इंटरेक्शन देखा हमने, सी दी मेंटल फिटनेस, स्लीप एंड रिलैक्सेशन, tackle your medical problem, and brain and nutrition, plus physical and mental exercise. This is the pillar of brain functioning. Okay? चलो स्टूडेंट, देन एवरीवन टेक केयर, बाय. यहीं पे हम खत्म करेंगे. आफ्टरवर्ड्स हम स्पाइनल कोर्स स्टार्ट करेंगे.